In the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 9. I hope you have enjoyed the Eid, and now this is time to study, to learn, to acquire knowledge. So, dear students, I think you have remembered the last lesson we covered was the Major Aziz Bhatti. So today's lecture we will learn the exercise of the lesson, the Major Aziz Bhatti. So dear students, so first we have to learn about adverbs and adjectives. So dear students, adverb and adjectives are the parts of speech. So first we have to understand adverb. What is adverb? So first I would tell you about the definition of the adverb. So adverb is a word that qualify a verb, adjective or an adverb. So this is definition of an adverb. Adverb is a word or parts of speech that qualify or that give the meaning of the verb, adverb or an adjective. So suppose I take an example of it. So I say Islam speak English fluently. So dear students, here fluently is an adverb, okay, that qualify speak as a verb, okay. So this is adverb. So dear students, adverb has also kinds. So adverb has also kinds. There are adverb of time, adverb of manner, adverb of place, adverb of frequency, okay. These are kinds of adverb. So whenever I will give the separate lecture on the adverb, so this is a brief description about the adverb and adjective. So now you have to understand the adjective. So what is the adjective? So dear student, as adverb qualify a verb, so like adverb, adjective also qualify a noun or give the meaning of noun or tell us number, quantity, quality. So this is called adjective. So it means adjective that give the meaning of noun or tell us a quality and quantity of a noun. Suppose I take an example. I say that he is a clever student. So dear students, here clever is used with noun students noun and clever is adjective. So here tell the quality of he. इसकी यहाँ जो he is used as a pronoun at the place of noun की जगह यूज हुआ है ही. इसकी क्वालिटी बता रहा है कि क्लेवर. कौन क्लेवर है? ही इज अ क्लेवर स्टूडेंट. क्लेवर आफ्टर डेट स्टूडेंट मीन्स क्लेवर इज अ क्वालिटी. टेल द क्वालिटी ऑफ द student, okay. I said it. Suppose I use there, I say some students, okay. So here some use as a adjective, students or bright. Bright is also adjective, okay. So some use as adjective, okay. So dear students, it means adjective is used with noun that tell us quality and quantity. Quality it means के मतलब उनकी
खूबी बताए या उनकी खुसूसियात बताए किसी नाउन के बारे में, या नंबर बताए। सपोज आप कहेंगे आई हैव 5 फिंगर्स। 5 क्या है? नंबर है। ओके, फिंगर्स क्या है? नाउन है। 5 फिंगर इन माई हैंड, इन हैंड्स यूज कर सकते हैं। सो लाइक दिस। वन थिंग more I would tell you about it. We can also make adverb from adjective. Suppose I said it faithful. Faithful is a adjective. If we make adverb from adjective, it will be faithfully. Okay, so we can also make adverb by adding ly. Okay, so it was. So in this exercise we will also learn the how to make adverb from the adjective or adjective from the adverbs. Okay, so dear students, here is a adverb. As I told you what is adverb, and adjective what is adjective, and I also gave you the examples of these two parts of speech. Now faithfully, as I told you that we can make adverb by adding ly. So faithful will be the adjective, and by adding ly it will be the faithfully. As a fearlessly is an adjective by adding ly, so here will be fearless. So like this, boldly is an adverb, here will be the bold. Courageously is an adverb, and courageous is the adjective. Fiercely is a adjective, adverb, and adjective will be fiercely. Fierce, F-I-E-R-C. So you can also make adverb from adjective or adjective from adverb. So you can enhance the vocabulary from using these methods. Okay, so now come to the exercise of the lesson. Okay, answer the following question. Why will the name of Major Aziz Bhatti, okay dear students, be written in the letter of gold? Okay, so मेजर अजीज़ भट्टी का जो नेम होगा वो लेटर्स, जो गोल्डन लेटर्स में क्यों लिखा जाएगा, कि उनका नेम क्यों मतलब रिकॉर्ड में रखा जाएगा, क्योंकि बिकॉज द नेम ऑफ मेजर अजीज़ भट्टी विल बी रिटन द लेटर ऑफ गोल्ड बिकॉज ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड, फॉर द नेशन, क्योंकि उसने अपनी जान कुर्बान कर दी किसके लिए? अपने मुल्क के खातिर. When and where did he fight? मतलब ये पूछ रहा है कब और कहाँ. ओके, सो इट विल बी on the morning 6 September 1965. 6 September 1965 he fought. Okay, what was his reply to his commanding officer? So definitely his reply to the commanding officer was that don't recall me, मतलब मुझे याद ना करें. आई विल फाइट, ओके, टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, जो भी मतलब एक कतरा भी होगा मेरे जिसमें, तब तक मैं लड़ूंगा अपने मुल्क के लिए दुश्मनों के साथ. ओके, सो इट वाज द क्वेश्चन, आंसर टू द क्वेश्चन. ओके, सो अगेन so number 4 थे के what is what lesson do you learn from the martyrdom of Major Aziz? Here my dear son, martyrdom means शहादत जो होती है, कि martyr जिसको एक होता है कि martyr means शहीद होता है.
शहीद होते हैं ना, शहीद किसको कहते हैं कि मतलब जो एक तो इस्लाम के खातिर मतलब वो लड़े अल्लाह की राह में, वो भी शहीद होते हैं, और जो एक जो मुल्क के खातिर जो लड़ें वो भी शहीद कहलाते हैं। जैसे कि आर्मी पर्सनल जो होते हैं, जो शहीद होते हैं दुश्मन से लड़ते हैं, वो भी शहीद कहलाते हैं। मार्टरडम मीन्स शहादत। ओके, so what lesson do you learn from the martyrdom? We learn from the martyrdom of Major Aziz Bhatti of the steadfastness, bravery, and lay the life for the मदरलैंड व्हेन इट इज़ नीडेड। जब ज़रूरत पड़े तो अपने मुल्क के लिए अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो वो हम कुर्बान करनी चाहिए। और ये एक पैट्रोटिज़म भी होनी चाहिए कि जो मोहब्बत वतनी होती है, अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। तो ये था एक आंसर थे क्वेश्चन के। सो अब आते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक काइंड ऑफ प्रोनाउन है, ये भी आप जान लें क्योंकि ये एक्सरसाइज में हमें मतलब दिया गया है कि वी आर गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डियर स्टूडेंट क्या है कि जो एक्शन, एक एक्शन होता है कि खुद से लिया जाए। खुद से लिया जाए का मकसद क्या है कि सपोज़ करें कि मैंने ये होमवर्क खुद ने, मतलब मैंने खुद ये होमवर्क किया है, मतलब आपने खुद ने किया है कि मतलब कि किसी और ने नहीं किया है, आपने किया है, तो आप कहेंगे कि वही चीज़ आप क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है कि खुद से। सपोज़ करें कि I myself wrote the letter, मैंने खुद ये खत लिखा। तो ये क्या है कि जब भी हम माय से, हिज से, हिम से, हर से, जो भी मतलब हम सेल्फ और सेल्फ किससे लगाते हैं, जो प्लूरल नाउन हो। ओके, जो प्लूरल में सेंस में हो तो वहाँ सेल्फिज यूज होते हैं। जैसे कि अवर सेल्फिज, अवर क्या है, सेल्फिज है। ओके, तो यूअर सेल्फिज होगा, क्योंकि मतलब अगर हमें क्या पता कि एक के लिए तो ये होगा सेल्फिज। माई सेल्फ होगा, हर सेल्फ होगा। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कोई काम खुद से किया जाए तो हमें मतलब हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तो डेफिनेशन थी। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ और सेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अवर से, यूअर से, हर से, हिम से आप सेल्फ लगाएं। यहाँ है कि ही दस अर्न फॉर हिम सेल्फ द निशान हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ओके, मतलब किसने, ये खुद ने, मेजर अजीज़ भट्टी ने खुद ने ये मतलब निशान हैदर जो हाई मिलिट्री अवार्ड है वो अर्न किया। ही हेड टू स्टेशन, ही देखें कि जो भी सब्जेक्ट में यूज़ होगा, सपोज ही यूज़ हो रहा है, शी यूज़ हो रहा है, उसके तहत हम यूज़ करेंगे। ही हेड टू स्टेशन हिमसेल्फ ऑन अ हाई प्लेस। ओके, हिमसेल्फ यहाँ यूज़ होगा। आई थिंक यू हैव gotten my viewpoints, okay, regarding the reflexive pronoun, and you will be easily to write and understand the reflexive pronoun. So now in this exercise you have to fill the reflexive pronoun according to the subject. Okay, what subject is, according to it you have to put the reflexive pronoun. This is homework for you as well. ओके, तो ये कंटिन्यू है, कितने हैं कि 10 है कि आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। आते हैं कि एक होता है कि WH क्वेश्चन जो होते हैं एज अ प्रोनाउन यूज़ होते हैं और एज अ एडजेक्टिव। मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था कि जब भी कोई WH क्वेश्चन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आए, जहाँ वर्ब आए तो वो प्रोनाउन यूज़ होता है। फॉर सपोज मैं कहूँ कि व्हाट इज़
व्हाट इज़ योर नेम, मैं कहूँ कि आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ यूज एज अ प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव तो ए, लेकिन ये यूज है एज अ प्रोनाउन। मैं कहूँ कि अगर वर्ड ही को मैं यूज़ करूँ कि व्हाट पेन डू यू लाइक, ओके, सो यहाँ यूज़ हुआ है कि है तो इंटेरोगेटिव, लेकिन ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। वर्ड के बाद में क्या है, पेन। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी कोई वर्ड, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड के साथ यूज़ हो तो वो एडजेक्टिव होता है। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड और गॉट इन माई पॉइंट। तो आते हैं इस पे, तो ये भी ऐसे ही होगा। ओके, हुज डेस्क आर दिस, ये एडजेक्टिव है। ओके, और यहाँ भी है कि हुज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हुज के बाद भी अम्ब्रेला, ये भी एडजेक्टिव है। अब आते हैं प्रोनाउन पे। मैं कहूँ कि हुज इज़ दिस अम्ब्रेला, अगर मैं कहूँ कि हुज इज़, इस हुज के बाद में इज़ आया कि ये प्रोनाउन हो गए। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है, ये भी आपका होमवर्क है। हुज पर्स इज दिस, यहाँ लिखा हुआ है हुज इज दिस पर्स। ओके, तो यहाँ होगा ये एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन, ये भी आप यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आई थिंक यू हैव कवर्ड इन माई पॉइंट्स। आपको क्या है, एक तो होमवर्क के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करने और रिलेटिव प्रोनाउन WH को यूज़ करने, और थर्ड में क्या करना है कि आप एडवर्ब और एडजेक्टिव को भी यूज़ करें। हाउ टू मेक एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रॉम एडवर्ब्स, ये भी आपके लिए कितनी मतलब होमवर्क हुआ आपको। एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है, सेकंड में आपको WH क्वेश्चन यूज़ करना है एज अ प्रोनाउन, एज एडजेक्टिव। थर्ड में आपको क्या करना है कि होमवर्क जो है वो एडवर्ब बनाएं एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएं, ये भी आपको मतलब होमवर्क है। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।